चलिए अब सीधा रुख करते हैं राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर हैदराबाद में आयोजित रोड शो का। More than 40 mines going in auction. You produce the limestone, the iron ore factories of Orissa are ready to buy it from this source. We have garnet deposits, we have gypsum deposits, we have potash deposits, we have rock phosphate deposits. You must have seen in the slide, in the presentation, we are almost 90% plus. We even have gold. We have the largest company probably in the country mining zinc, lead, Hindustan Zinc Limited. We have the largest number of mines any state has. We have 32,115 mining leases and quarry leases. We are almost producing 17% of the value of the mines. We contribute 22,000 crores worth major mineral and 10,000 crores of minor mineral. And it's a small scale industry. If you subtract Hindustan Zinc and few, maybe 22 cement factories, which are worth more than 50,000 crores. I actually don't know, I don't own any of those cement factories, but huge in mining. Petroleum, the second largest in the country, largest onshore, 20% of the crude produced in India is produced in Rajasthan. And about 3 of our hydrocarbon reserves out of the 4, Badmer, Sanchor Basin, Jaisalmer, Bikaner, Nagaur and Vindhyan. These are the 4 basins we have. 3 are upgraded to category 1 and they have confirmed reserves of 205 million barrels of crude oil. And I'm not saying you become Keynes. You don't need to be Keynes. But be something that you can earn from and give us. It has to be a win-win situation. One great thing I like to speak. We are also leaders in moving with you. You come up with an idea and we'll move with you. We are the first state, Archana has mentioned it, but I'm on the cost of repeating, saying we were and we are the first state who passed an MSME Act. An MSME Act, if you see, open your mobiles, type in rajudyogmitra.rajasthan.gov.in. This is the first state which has passed an act which has been copied by 12 other states, which says that there shall be no inspection under any act of the state for 3 years. And no person will go to the premises. It has been made an offense. 3 years you function, we trust you. That is the level of trust we have. Any state government departments, any agency, any inspector, any officer will not visit you. You start your work there. It was meant for MSME and MSME is now huge, 75 crores. So you come and invest, nobody is bothering you. We promise you literally a government interference free environment to come and work. So once again, thanks to the lovely people of Telangana, Hyderabad. अब खबर हनुमानगढ़ से है। इन्वेस्टमेंट समिट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल है मुख्य अतिथि। उद्यमियों के साथ होंगे 25 MOU साइन और 4 LOI। राज्य सरकार की अहम पहल। राजवी पैलेस में इन्वेस्टमेंट समिट बेहद महत्वपूर्ण ये पहल है। फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहा है और तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा उत्साह लोगों में है राजस्थान में निवेश करने को लेकर। और हनुमानगढ़ में इस इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है जहां पर इन्वेस्टर्स आए हैं और उन्हीं के साथ आज चर्चा की जाएगी और जो एजेंडा है वो सभी के समक्ष रखा भी जाएगा। इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर के खास कार्यक्रम। प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। उद्यमियों के साथ होंगे 25 MOU और 4 LOI। तो राज्य सरकार की अहम पहल है जिससे राजस्थान में निवेश को बढ़ावा मिले।
Rajasthan Investment Promotion Scheme 2019 is one of the most attractive packages of. चलिए अब एक बार फिर से आपको हैदराबाद लिए चलते हैं। मंत्री सुभाष गर्ग क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। मिस्टर संजय सिंह जी, श्री आनंद मिश्रा जी, श्री सुनील परियार जी, श्रीमती अर्चना सिंह जी और मिस्टर साबू जी और मेरे सामने बैठे हुए सभी विशिष्ट गणमान्य हमारे पुराने साथी गोपाल मोर जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ। सर्वप्रथम मैं राजस्थान सरकार की ओर से अपनी ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरे से पहले बहुत कुछ कह दिया गया है। नथिंग हैज बीन लेफ्ट फॉर मी, व्हाट शुड आई से। सुबोध अग्रवाल जी ने पूरा खाका खींच दिया है। क्या हैदराबाद, क्या राजस्थान, क्या जयपुर, क्या उदयपुर, सुनील परियार जी ने आपको बता दिया है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, there is a big difference in तेलंगाना एंड राजस्थान। तेलंगाना में केवल हैदराबाद नजर आता है, राजस्थान में 3300 जिलों के हेडक्वार्टर्स नजर आते हैं। आप अपनी आंख बंद कर लीजिए और राजस्थान के नक्शे पर कहीं भी उंगली रख देना, आप या तो कोई हिस्टोरिकल प्लेस पाओगे, या कोई हेरिटेज प्लेस पाओगे, या कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन पाओगे, या कोई इंडस्ट्री हब पाओगे। आपने राजस्थान का नक्शा देखा होगा, कहीं भी उंगली रख के देखने ना, ये है राजस्थान। लेकिन उस वक्त जिस वक्त आप लोगों ने, हमारे एंटरप्रेन्योर्स ने राजस्थान को छोड़ा, उस वक्त का राजस्थान और आज का राजस्थान बहुत परिवर्तित हो गया। देयर इज लॉट ऑफ चेंज रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस, regarding like relaxation in our policies, चाहे वो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज हो, चाहे वो ट्रेड एंड कॉमर्स को इजी डूइंग बिजनेस के रूप में। वी आर लाइक 7th इन द स्टेट, 8th और लाइक 7th इन द नेशन, किसी भी दृष्टिकोण से देखें। और मैं तो कहना चाहूंगा कि भाई पूरे देश पर कोई राज कर रहा है, कौन कर रहा है? राजस्थान के एंटरप्रेन्योर्स हैं। देख लीजिए टॉप 20, यू आइडेंटिफाई द टॉप पीपल्स आइदर हु बिलोंग्स टू राजस्थान और लाइक एनआरआईज, प्रवासी राजस्थान कह सकते हैं। लेकिन वो वक्त था, अब वो वक्त है जहां की आपके लिए स्वागत के लिए तैयार है राजस्थान। हम लोग रिच पॉलिसी जो अभी 2019 में माननीय अशोक गहलोत जी ने लॉन्च की है, और मोस्ट ऑफ you peoples must have gone through that policy. मैं समझता हूं इससे बढ़िया पॉलिसी इस वर्तमान दौर में, आप सब बिग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यू आर मोर इंटेलिजेंट देन अस, यू नो द प्रो कॉन्स। तो मैं समझता हूं ऐसी पॉलिसी शायद किसी स्टेट में नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ने क्वेरी की इस पॉलिसी के बारे में। जिस रेगिस्तान की आप बात करते हैं, उस रेगिस्तान को भी यह चेंज इन अपॉर्चुनिटी है। सोलर एनर्जी, देश का दुनिया का सबसे बड़ा सोलर हब बन रहा है। जिस रेगिस्तान की रेत की दौरों की अभी बात समूह जी कर रहे थे, अब वहां आके देखिए आप। दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो सबसे बड़ा सेक्टर जो इमर्ज होते, मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात कर रहा हूं, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज की बात करता हूं। यू अर्न लॉट ऑफ मनी and invest in the hospitality in the Rajasthan. Every district you will find a good place. Meditourism, we have developed a Meditourism policy, Ayush policy 2020. We are providing land on reasonable rates or lease basis also. You can develop a Meditourism center there. आप कहीं भी जाइए, देखिए आप केरल की तर्ज पे, केरल को भी पीछे छोड़ेगा राजस्थान आने वाले 5-7 वर्षों में, मैं आपको बता रहा हूं। मैं खुद इस आयुर्वेद डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हूं। हमने वी आइडेंटिफाइड 20 सेंटर्स, माउंट आबू, कुंभलगढ़, पुष्कर, रणथंभौर, गिरिराज महाराज जी का है गोवर्धन, नाम सुना होगा आपने, वहां पूछरी का लौटा इज ए प्लेस, वहां धनावर सेंचुरी के पास भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा,
जहां हमने बीएन आइडेंटिफाई कर वी हैव अलाउड बाई, आप आइए, आप यहां पैसा कमाइए और वहां हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री डेवलप करिए, रिजॉर्ट्स खोलिए। मैं भी टूरिज्म की बात कर रहा हूं, आप रिजॉर्ट्स खोलिए, आयुष के सेंटर जहां आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योगा, सिद्धा, ये सारी विधाओं को डेवलप करिए। तो हर आदमी को एक साल में 10 दिन का अगर रिलैक्स चाहिए, नहीं चाहिए। आप तो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप भी जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, सिंगापुर क्या है आदत। राजस्व मंत्री रामलाल जाट यहां पर संबोधित कर रहे हैं। सभी के स्पीच होने के बाद, अर्चना सिंह जी, सुबोध जी के बोलने के बाद कोई चीज बाकी बची नहीं। संजय सिंह जी लास्ट में बोलने वाले को मेरे से बोलने के बाद उद्योग मंत्री जी की स्थिति और ज्यादा ऐसी हो जाएगी कि क्या चीज बोले, सारी चीज रिपीट होती है। मैं उन चीजों पर नहीं जाते हुए आप सबको इनवाइट करने के लिए आज इस रोड शो के प्रोग्राम में पधारो हमारा देश, राजस्थान की तरफ से आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करना चाहूंगा। मैं एड्रेस करने से पहले आप नीचे बैठे हुए लोगों को सबसे पहले एड्रेस किया, बाकी हर बार एड्रेस करते तो डाइस पे बैठे हुए लोगों को पहले किया जाता है। इसका डिफरेंट अंतर जो आप समझोगे, हालांकि जानते हो आप, लेकिन मैंने इसलिए किया कि डेमोक्रेसी में जो ताकत होती है, एक समय था जो मुगलों का राज था, राजाओं का राज था, अंग्रेजों का राज था, तो अलग अलग तरीके हुआ करते थे सरकार के टैक्स के लिए, लोगों पे कर लगाने की तरीके अलग हुआ करते थे, कई बार जोर जबरदस्ती थी, दंड की प्रक्रियाएं थी। लेकिन समय बदला तो व्यापारी की तराजू में कोई चीज में जो वजन होता है, वो तराजू का जो हम चेला बोलते हैं वो नीचे रहता है, और जिसमें वजन कम होता है वो ऊंचा रहता है। तो आप देख सकते हो डिफरेंट जो है, जो आप नीचे बैठे हुए हम ऊपर बैठे हुए, जो वजन आप में है ज्यादा, वो वजन है आपकी बुद्धिमत्ता का, आज की उद्यमिता का। आप जहां पे भी हैं, चाहे लोकल यहाँ आंध्रा तेलंगाना के हैं या बाहर प्रवासी राजस्थानी हैं, मैंने देखा सभी लोग शामिल हैं। हम सभी उद्योगपतियों को निमंत्रण देने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। जो भी जहां उद्योग लगाता है उसकी बुद्धिमत्ता से कई चैलेंज उसके सामने आते हैं, लेकिन आपने जहां से उद्योग लगाया वहां के स्थानीय लोगों को जिस तरह रोजगार दिया, वहां की स्थानीय गवर्नमेंट को जिस तरह टैक्स के रूप में पैसा दिया, चाहे भारत सरकार को दिया, चाहे राज्य सरकार को दिया, वो अपने चहुमुखी विकास, चाहे समाज कल्याण की योजनाएं हो या और राज्य का विकास हो, उसमें महती जो भूमिका है वो उद्योगों की है। इस चीज को हर सरकार समझ चुकी है। राजस्थान तो वो प्रदेश है, अतिथि भव, सनातन धर्म में वो चीजें हैं, सनातन धर्म हर धर्म का समावेश करते हुए चलता। सर्वधर्म सुखी मंत्री शकुंतला रावत क्या कुछ कह रही सुनिए। चाहे बिजली हो, पानी हो, कृषि के क्षेत्र में हो, सड़क हो, उत्पादन की कृषि के क्षेत्र में हो, प्राकृतिक संसाधन एवं मानव संसाधन की उपलब्धता भरपूर है राजस्थान में। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो कि हमारे लगभग 40% भाग पूरे देश के बाजारों को टच करता है, राजस्थान का हिस्सा। और निवेशक की सुविधा के लिए अभी वैसे सारी योजनाएं हमारी बता दी गई है। वन स्टॉप शॉप, यानी कि आपको कहीं ऑफिस में चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वो जैसे सीरियल आता है ना ऑफिस टू ऑफिस, ऐसा नहीं होगा। एक छत के नीचे आपको सारी सुविधाएं वहां अवेलेबल हो जाएंगी। राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम 2019 में लागू किया जा चुका है, जिसमें कि 3 वर्षों तक उद्यमी से किसी तरीके का कोई स्वीकृति, कोई निरीक्षण, इस तरीके की कोई जानकारी नहीं ली जाएगी। राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 लागू की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है
कि उद्यमी को अनुकूल औद्योगिक आधारभूत संरचना, प्रतिस्पर्धात्मक वित्तीय प्रोत्साहन, कुशल मानव संसाधन, संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण, सतत औद्योगिक विकास, उद्योगों का तकनीकी उन्नयन का प्रयास रहेगा। राजस्थान निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए 2019 जो सेवा निर्माण के साथ साथ थ्रस्ट सेक्टर हेतु अतिरिक्त परिलाभ भी कस्टमाइज्ड पैकेज विशेष लाभ का प्रावधान रहा है, और उससे भी बड़ी एक मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना, जो कि राजस्थान के पारंपरिक जो उद्योग धंधे हैं उन्हें अगर कोई स्थापित करना चाहता है तो 25 लाख पर 8% ब्याज राशि अनुदान राशि सरकार की तरफ से दे होगी, 5 करोड़ पर 6% और 10 करोड़ पे 5% राशि सरकार की तरफ से अनुदान राशि दे होगी। ये एक निवेश को बढ़ावा देने के लिए है। और HPCL के साथ राज्य सरकार द्वारा जॉइंट वेंचर रिफाइनरी का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें रिफाइनरी से निकलने वाले बाई प्रोडक्ट के लिए डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज की स्थापना हेतु पेट्रोलियम केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल निवेश के क्षेत्र में PCPIR की स्थापना की गई है, जिससे कि वहां के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। कृषि के क्षेत्र में हो, जो भी हमारे जो सरकार की जो योजनाएं हैं, अभी हमारे यहाँ हस्तकरघा और हस्तशिल्प निदेशालय बनाया गया है। राजस्थान का पहली बार ऐसा हो रहा है हस्तशिल्प का जो निदेशालय बनाया जा रहा है कि जो हमारे कुछ लोग इस धंधे को लुप्त होता जा रहा था उसे वापस से सृजन करने के लिए शीघ्र जारी की जा रही है। राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं, सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं, चाहे कोरोना काल रहा हो उसमें फ्री दवा योजना और निरोगी राजस्थान, फ्री जांच, कृषि के यंत्रों में 50% की छूट सब्सिडी देनी हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, लड़कियों के लिए महिलाओं के लिए उड़ान योजना जिसमें नैपकिन सैनिटाइजर फ्री में ग्राम में सभा में जो ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती हैं, सहायिका होती है, वो देंगी। और जो पेंशन योजना है हमारी, उसमें वृद्धावस्था पेंशन हो, बोना पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, कैंसर की जांच, एक अभी हमारे यहाँ एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया जो फ्री जांच करेगा और वहीं पर उसको ट्रीटमेंट भी फ्री वहां दिया जाएगा, उसके घर पे 104 एम्बुलेंस हो। और कई बार दुर्घटना के बाद लोग डर की वजह से उठाते नहीं है एक्सीडेंट होने के बाद केसों को, तो मुख्यमंत्री महोदय ने प्रोत्साहन राशि के रूप में 5,000 रुपए की घोषणा करी कि जो उठा करके भर्ती कराएगा उसके ऊपर कोई केस नहीं लगेगा और उसको 5,000 रुपए और गिफ्ट दिया जाएगा। तो इस तरह की योजना हमारे राजस्थान सरकार की, और सबसे बड़ी चिरंजीवी योजना जिसमें श्रमिक BPL ऑटोमेटिक पॉलिसी से जुड़ गया, बाकी आम व्यक्ति किसी भी कैटेगरी का मात्र 850 रुपए में उससे जुड़ सकता है साल के, और 5 लाख तक का ऑपरेशन चाहे जहां प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले सकता है। ये इतनी सराहनीय योजना है जिसका कि हर घर को टच करने वाली योजना है राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय की। मैं आपसे राजस्थान में निवेश करने की एक आशा रखती हूं, क्योंकि IT एंड ITS आपके राज्य का प्रमुख मैं मानती हूं कि एक हिस्सा है। राजस्थान में निवेश के आकर्षक अवसर हैं और भौगोलिक और प्राकृतिक दृष्टि से राजस्थान एक बहुत ही सुंदर और शुद्ध वातावरण वाला प्रदेश है, और इसमें संदर्भ में बहुत सारे क्षेत्रों में निवेश की संभावना जो आपके यहाँ से जा सकते हैं, चाहे साइबर सिक्योरिटी हो, बिग डाटा हो, क्लाउड कंप्यूटिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैटबॉट आदि निवेश आप वहां कर सकते हैं। IT के क्षेत्र में कई प्रसिद्ध कंपनियां हमारे राजस्थान में पहले से स्थापित हैं, चाहे इन्फोसिस हो, डोस बैंक हो, जैनपैक्ट हो, क्यूलिकस हो, सॉफ्टवेयर IT एंड IT राजस्थान ट्रस्ट सेक्टर है। मैं हमारे सभी ऑफिसर्स, क्योंकि हम जहां गए, चाहे बॉम्बे गए हो वहां 200 लाख करोड़ के MOU वहां साइन हुए थे, दिल्ली गए वहां पर भी इस तरह से,
तो इतने एमओयू साइन हुए। मैं आपको आज राजस्थान सरकार की तरफ से, मेरी तरफ से मैं आश्वस्त करती हूँ कि आपकी भी जो कोई मन की भावना होगी, आकांक्षा होगी कि हम ये बात रखना चाहते हैं, हमारे ये तरीके से करना चाहिए, तो हम उसका भी स्वागत करते हैं। आप जो यहाँ पधारे सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ और मेरे राज्य और सरकार की तरफ से मैं आश्वस्त करती हूँ कि राजस्थान में निवेश करने पर आपको भरपूर सुविधाएं दी जाएंगी। राजस्थान का जो वातावरण और जो इतिहास रहा है वो बहुत ही सराहनीय रहा है। जो हमारा लोगो है, बोली दिया पधारो हमारे देश, तो ये सारी चीजें, यानी कि आप हमारे राजस्थान में आए, आप में से कुछ राजस्थानी भी हो सकते हैं। भारत देश पूरा, जहां अलग अलग जाति, धर्म, पोशाक और बोली भाषा और फिर एक भारत बनता है। जैसे एक व्यक्ति बनता है, इंसान बनता है, हर चीज का नाम अलग है। आंखें हैं, कान, नाक, हाथ, मुंह, पैर, सबको बना करके मिलकर के एक इंसान होता है। इसी तरीके का जैसे एक इंसान खड़ा दिखता है, उसी आकृति में हमारे भारत देश का नक्शा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो वहां पर अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग पोशाक है, पहनावा है, सबकी बोली भाषा अलग है और मिलकर के एक भारत देश हमारा कहलाता है। उसमें हमारा एक जो कहा जाता है हमारे राजस्थान के लिए कि चाहे रंगीली चुनरियां हो और रेत के धोरे हो, नदियां हो, पहाड़ हो, तो ऐसा मेरा एक राजस्थान है। मैं आप सभी को सबसे पहले, अभी क्रिसमस डे आने वाला है, तो हैप्पी क्रिसमस डे सबको। हमारे भाई राजस्थानी हिंदी में कहते हैं बड़े दिन की शुभकामनाएं आप सभी को। और नव वर्ष भी आने वाला है, आपके लिए नया वर्ष खुशियों वाला हो, पिछली साल की तरह महामारी वाला नहीं हो कि हमारे मुंह बंद कर दिए। अब की बार कम से कम ऐसा नया वर्ष हो कि हंसता या मुस्कुराता या गुस्से वाला कोई चेहरा दिख ही नहीं रहा है, कि कोई गुस्सा कर रहा है, कि कोई हंस रहा है, कोई खुश हो रहा है, किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखती है, सब इसके अंदर बंद हो गई है। तो ये ऐसा वैश्विक महामारी वाला नहीं हो और तेलंगाना आपका प्रदेश खुश रहे, यही मैं कामना करती हूँ। और पक्षी यानी बर्ड, हमारे राजस्थानी में उसको पंछी कहते हैं, तो आपके ऊपर और हमारी प्रदेश सरकार के ऊपर मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी और आपको इनवाइट करना चाहूंगी कि आप आए और मेरे से कोई भी अपनी बात हो तो उसको साझा कर सकते हैं मेरे से। पंछी वो कलाकार है, पंछी वो कलाकार है, एक एक दिन का जोड़कर घोंसला बना देता है। पंछी वो कलाकार है, एक एक दिन का जोड़कर घोंसला बना देता है। हैदराबाद का निवेशक वो मेहरबान है, हैदराबाद का निवेशक वो मेहरबान है, जो एक एक निवेश कर आज के युवा को हुनरगार बना देता है, एक एक युवा को जोड़कर हुनरगार बना देता है। राजस्थान का मुख्यमंत्री ऐसा कदरदान है, राजस्थान का मुख्यमंत्री ऐसा कदरदान है, अपनी सरकार की योजनाओं से हर इंसान को परिपूर्ण बना देता है, परिपूर्ण बना देता है। धन्यवाद। राम राम साहब।